Students, here we come to study on online education from BMC. My previous lesson was English in moral story about bubble tree. Now I want to give my intro again. I'm Shabista Afreen Mohammad Nazir from Shivaji Nagar Urdu School number 7. Okay. Before start the lesson, I ask you some questions. You have to please try to give me the answer. Okay, I'm only just ask you your simple and easy questions. Class 5th subject English. आज की डेट है, today's date is 17/9/2020. Okay, let me start the lesson. It is an introduction part. You have to give me the answer of easy questions. Okay. Answer the following question. My first question is, do you सुन सकते हो ना? सुन सकते हो? आप लोग सुन सकते हो बेटा? Yes, ma'am. Okay, okay. स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Do you like stories, children? Yes. आपको कहानी पसंद है? Okay, very good. You all of you like the stories? Yes. Okay, very good. My second question is, what do you like about stories? आपको stories में क्या अच्छा लगता है? Moral stories. Moral stories, okay. And stories are fun. They talk about things, non-living things, trees. Trees, they are talking in stories. In real life, trees are talking? Trees are talking? No. In real life, trees are not talking. Okay. In only stories, trees are talking. So it is a very funniest thing in stories. Okay. Now third question is, which story do you like most? आप अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टोरी सुने हो, तो आपको कौन सी स्टोरी पसंद है? Tell me the name of story. Tell me the name of story. Prince. Friends or something else? Something else? Never ending story. Yeah. And something like like mouse and lion. Okay. Yes. There were moral stories, lot of moral stories. How do you listen? Which type of stories do you want to listen? आपको किस तरह की stories सुनना पसंद है? Funny stories. Okay. राजा रानी वाली, animals की, princess की, किस तरह की? Funny stories. Funny stories. Very good. So today is my lesson about a funny and interesting and moral story about one little girl. In your textbook page number, it's 38. And previously I told you that in every language you have to bring your textbook. Okay. Without any textbook, we can't learn any language. Okay. So you have to take your textbook first. So I already share my screen, so you have to see there. Today we are going to learn an interesting and moral story from your textbook page number 38, and the name is, the story is Alyanushka. Okay. Now, once upon a time, there was a girl called Alyanushka. एक दफा की बात है, एक मर्तबा की बात है, एक बच्ची थी छोटी सी प्यारी सी, जिसका नाम था आलियानुष्का. There was a girl called Alyanushka. Alyanushka lived with her father. वो अपने डैडी के साथ रहती थी. Mother, अपनी मम्मा के साथ. And the baby brother called Ivanushka. वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती थी, छोटी सी हैप्पी फैमिली, जिसमें थे उसके डैडी, मम्मी और छोटा सा भाई, जिसका नाम था इवानुष्का. One day, mother said to Alyanushka, "Daughter, we are going to work." मदर ने कहा, मम्मी ने कहा आलियानुष्का से कि बच्चा, हम जो है काम पर जा रहे हैं, तुम्हारे डैडी और मैं. Be a good girl and look after your baby brother. एक अच्छी बच्ची बनो और अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, ख्याल रखो,
को उसे कर देना, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और तुम उससे बड़ी हो, तो तुम जो है उसका ख्याल रखोगी बहुत अच्छे तरीके से। मदर एंड फादर वेंट अवे, वो दोनों काम पर चले गए। Alyosha forgot all that her mother had said. Alyosha भूल गई कि उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा था। उसकी मम्मी ने कहा था अपने भाई का ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसे कहीं भी जाने मत देना, वो चल नहीं सकता है, वो सिर्फ रेंगता है, इसीलिए वो बोल भी नहीं सकता, इसीलिए आपको जो है उसका ख्याल रखना है। She seated her baby brother on the grass, और उसने उसे ग्रास पर यानी घास पर बिठा दिया। Ran out to her friends and began to play with them. अब बिठाते हुए उसने देखा उसके जो दोस्त है वो हरी हरी घास पर खेल रहे हैं। अब आल्यूनुष्का भी छोटी सी बच्ची थी, उसे खेलने का बहुत मन किया, तो वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी उस हरी हरी घास पर। She clean forgot to look after her baby brother. अब वो पूरी तरह से भूल गई कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना था, ख्याल रखना था कि वो कहीं जा नहीं सके, कहीं भी नहीं दौड़ सके, ना इधर उधर भाग सके और कोई भी उसे उठाकर ना ले जाए। Suddenly, अचानक, a flock of geese, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, गीज जो है एक परिंदे का नाम है गूज, और गीज जो है उसका प्लूरल है। गूज होता है एक लंबी गर्दन वाला परिंदा जिसे हिंदी में कलकुंच कहा जाता है, या हंस जैसा दिखाई देने वाला परिंदा। अ फ्लॉक ऑफ गीज केम फ्लाइंग, दे swooped down. swooped down, swooped का मतलब होता है झपटा मारना। वो फ्लॉक ऑफ गीज, झुंड के झुंड जो गीज थे, वो झपटा मारकर उस बेबी ब्रदर को उठा लिया। picked her baby brother and flew away with him. उन्होंने उसे उठा लिया और उड़ गए उसे लेकर। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू। ओके, लुक आल्यूनुष्का, cried one of the children. एक बच्चे ने रोते हुए कहा, आल्यूनुष्का देखो देखो देखो, तुम्हारे भाई को गीस उठाकर ले जा रहे हैं। The geese are flying away with your baby brother. और वो उसके साथ उड़ रहा है, जल्दी देखो। Stop, stop, you wicked birds. Stop, stop, said Alyosha. Alyosha ने कहा, रुक जाओ, ए बुरे परिंदे। विकेट का मतलब होता है बुरा परिंदा, बिल्कुल बुरा। विकेट परिंदे बिल्कुल बुरे। यहाँ पर आल्यूनुष्का ने कहा, रुक जाओ बुरे परिंदे, तुम रुक जाओ, तुम नहीं ले जा सकते मेरे भाई को, वो अभी बहुत छोटा है, तुम क्यों लेके जा रहे हो। और वो बहुत चिल्लाने लगी जोर जोर से, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। She ran after the birds. वो बर्ड्स के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बर्ड्स आसमान में उड़ रहे थे बहुत तेजी से, और वो उनके पीछे तेजी से दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी, स्टॉप स्टॉप, प्लीज रुक जाओ, वो मेरा छोटा भाई है, मत ले जाओ। द बर्ड्स फ्लू फास्टर एंड फास्टर, और वो परिंदे तेजी से लगे, बहुत तेजी से। एंड वे आर सून आउट ऑफ साइट, और फिर वो धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। वो बेचारी दौड़ती रही, चिल्लाती रही कि रुक जाओ, लेकिन उन बुरे परिंदों ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और वो उसे उठाकर ले गए। पुअर आल्यूनुष्का, व्हाट कुड शी डू? बेचारी आल्यूनुष्का अब क्या कर सकती थी? बहुत रोने लगी, सिसकियां ले लेकर रोने लगी। She sobbed and wept. Sobbed का मतलब होता है सिसकियां लेकर रोना, and wept बहुत ज्यादा रोई। मेरा भाई बहुत छोटा था, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे। वो बहुत ज्यादा रोई। But then she got up and said, I must bring back my baby brother. और फिर वो उठकर खड़ी हो गई और खुद से कहा, मुझे मेरे भाई को लाना ही होगा। मैं मम्मी से क्या कहूंगी? मम्मी ने मुझे दिया था उसे संभालने के लिए और मैं उसे नहीं संभाल पाई। मैं उसे जरूर लाऊंगी, चाहे कहीं से भी लाना पड़े। मैं जरूर उसे ढूंढ लूंगी।
Away ran Alyosha to where the birds had flown. Alyosha दौड़ने लगी जहां पर वो परिंदे उड़ चुके थे. वहां पर उस रास्ते पर वो दौड़कर चिल्लाने लगी, इवानुष्का, 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 माय लिटिल बेबी ब्रदर, इवानुष्का. वो चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी. She ran and ran. वो दौड़ती गई till she came to an oven. और वो पहुंच गई एक ओवन के पास. You listen, oven, आपने देखा है ओवन? हमारे घरों में होता है, हमने टीवी में देखा है, कुकिंग शो पर देखा है. ओवन होता है एक इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा या इलेक्ट्रिक वाला बेकिंग चूल्हा जिसमें हम बेक करते हैं पाव, ब्रेड, केक एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हम खाना भी बनाते हैं ओवन में. तो उसे ओवन मिला एक जंगल में, जबकि ओवन तो चलता है इलेक्ट्रिक पर और जंगल में इलेक्ट्रिक नहीं होती. ओवन, tell me where the geese have flown. अलीनुष्का ने रोते हुए ओवन से कहा, ओवन प्लीज मुझे बताओ, वो बुरे से परिंदे मेरे छोटे से भाई को उठाकर ले गए हैं. पता नहीं कहाँ गए. मुझे मेरी मम्मी बहुत डांटेंगी. उन्होंने मुझसे कहा था मेरे भाई को संभालने के लिए और मैं उसे नहीं संभाल पाई, मैं नहीं ध्यान रख पाई. प्लीज मुझे बता दो, आपने देखा है उन गीस को उड़ते हुए? क्या वो यहाँ से उड़े थे? यहाँ से कहाँ गए थे? प्लीज मुझे बता दो. प्लीज मेरी हेल्प कर दो ओवन. Eat a slice of my wheat bread first. ओवन ने कहा कि पहले तुम मेरे पास रखे हुए व्हीट ब्रेड, गेहूं के आटे से बने हुए ब्रेड को एक स्लाइस को तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा. उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो गीस कहां पर उड़कर गए हैं. What? Eat a slice of a wheat bread? At home we don't eat even wheat cakes. क्या कहा तुमने? अलीनुष्का ने उसे जवाब दिया. क्या कहा तुमने ओवन? Eat a slice of a wheat bread? मैं गेहूं के बनी हुई कोई चीज नहीं खाती हूँ. गेहूं के आटे की रोटी, ब्रेड, केक्स आई डोंट लाइक. मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ और घर में मैं नहीं खाती हूँ. तो मैं कैसे खाऊं ये व्हीट ब्रेड? ये जो गेहूं से बना हुआ ब्रेड है, मैं ये नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं गेहूं के आटे की बनी हुई कोई चीज नहीं खाती हूँ. मैं नहीं खा सकती. अलीनुष्का ने रोते कहा. So the oven kept quiet. ओवन जो है खामोश हो गया. अलीनुष्का ran on, but then she turned back and said. अलीनुष्का दौड़ चली, वहां से निकल गई. लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवन को रास्ता पता है कि वो किस तरफ उड़े हैं. अगर मैं उसका एक ब्रेड खा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कम से कम रास्ता तो पता चल जाएगा. वो पीछे मुड़ी और जाकर कहने लगी, I'm sorry ओवन, I would like to taste your wheat bread. मुझे माफ कर दो ओवन, मैं आपका व्हीट ब्रेड टेस्ट करना चाहती हूँ. गेहूं के आटे से बना हुआ ब्रेड मैं टेस्ट करना चाहती हूँ. I'm really sorry. Alyosha ate a slice of the wheat bread and the oven showed her the way. अलीनुष्का ने उस ब्रेड का एक स्लाइस खाया और फिर ओवन ने उसे रास्ता बताया कि वो बुरे से परिंदे उसके भाई को कहाँ ले गए. She thanked the oven and ran on. उसने ओवन से कहा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और वो वहां से निकल गई. दौड़ने लगी, जोर जोर से भागने लगी, चिल्लाने लगी, इवानुष्का, इवानुष्का, लेकिन उसे इवानुष्का कहीं दिखाई नहीं दी. Soon she came to a apple tree. और बहुत जल्द ही वो सेब के दरख्त के पास पहुंची और क्या कहा? Apple tree, tell me where the geese have flown. सेब के दरख्त, प्लीज मुझे बता दो कि वो बुरे से परिंदे कहाँ गए हैं. उन्होंने मेरे छोटे से भाई को ले गए हैं, बहुत छोटा है. Eat one of my wild apple first, said the apple tree. एप्पल ट्री ने कहा, पहले तुम्हें मेरा एक जंगली सेब खाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे भाई को वो गीस कहाँ ले गए हैं. What? Me? Eat a wild apple? At home we don't eat even garden apples. क्या कह रहे हो? मैं तो पास से एप्पल भी नहीं खाती. वो तो कितने फ्रेश, रेड और मीठे मीठे होते हैं.
मैं तो एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर जंगली सेब कैसे खा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। So the apple tree kept quiet. एप्पल ट्री बिल्कुल खामोश हो गया। आलिनुष्का ran on, but then she turned back and said, आलिनुष्का दौड़ती गई, लेकिन उसने रास्ते में सोचा, ओह नो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो गेहूं के बने हुए ब्रेड नहीं खाना चाहती थी, लेकिन मुझे खाना पड़ा। मैं एप्पल भी नहीं खाना चाहती क्योंकि मुझे एप्पल है, लेकिन अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो मुझे रास्ता कैसे बताएंगे? I'm sorry, apple tree. I would like to taste your apples. वो एप्पल ट्री के पास गई और कहा, मुझे माफ कर दो एप्पल ट्री, मैं आपका एक जंगली सेब खाना चाहती हूँ। She ate a wild apple and the apple tree showed her the way. उसने एक जंगली सेब खा लिया और फिर जंगली सेब खाने के बाद एप्पल ट्री ने उसे रास्ता बताया। She thanked the apple tree and ran on. उसने एप्पल ट्री से कहा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और वो वहां से निकल गई, दौड़ने लगी और दौड़ते हुए चिल्लाने लगी, आयुनुष्का, और वो चिल्लाते हुए पुकारने लगी अपने छोटे से भाई को। Soon she came to a milk river. Have you listened, milk river? In the real things, milk river is had. मिल्क रिवर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बट इन द स्टोरीज मिल्क रिवर होती है। देखते हैं कैसी होती है मिल्क रिवर। मिल्क रिवर मतलब दूध की नदी, दूध की नदी। मिल्क रिवर, प्लीज टेल मी वेयर द गीज हैव गॉन। दूध की नदी, प्लीज मुझे बता दो कि वो गीस कहाँ गए हैं। वो मेरे छोटे से प्यारे से भाई को लेकर उड़ गए हैं, जो कि वो बहुत छोटा था। पता नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो, क्या तुमने देखा है उन्हें उड़ते हुए यहाँ से? Have some milk first. मिल्क रिवर ने कहा, पहले तुम्हें थोड़ा दूध पीना पड़ेगा, और कहा, जब तक तुम दूध नहीं पियोगी तब तक मैं रास्ता नहीं बताऊंगी कि वो बुरे से परिंदे तुम्हारे भाई को कहाँ लेकर गए हैं। What she said, क्या कहा? दूध पीना पड़ेगा? आलिनुष्का totally blank. आलिनुष्का ने सोचा, have milk at home, I don't touch even cream. उसने सोचा, मैं दूध पी लूं, मैं तो घर पर क्रीम को भी हाथ नहीं लगाती हूँ, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह शिट, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं गेहूं के आटे के बने हुए ब्रेड नहीं खा सकती, लेकिन मुझे खाना पड़ा। मैं एप्पल नहीं खाती, लेकिन मुझे खाना पड़ा। अब ये दूध, मैं दूध नहीं पी सकती, बिल्कुल नहीं, मुझे दूध नहीं पसंद है। ऐसा मत कहो, मुझे दूध पीने के लिए मत कहो। वो ये सब सोच रही थी, but then she thought, no, I must not say that. मैं लेकिन ऐसा नहीं कह सकती, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इवानुष्का को मुझे ढूंढना है, और ये रिवर जानती है कि इवानुष्का कहाँ है, वो गीस कहाँ गए हैं। So she had some milk. उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। The milk river showed her the way. और फिर दूध की नदी ने उसे रास्ता बताया कि वो उसे कहाँ ले गए हैं। She thanked the milk river and ran on. उसने मिल्क रिवर से कहा, थैंक यू सो मच, और वो वहां से निकल पड़ी। वो दौड़ने लगी, बहुत दौड़ने लगी, तेजी से दौड़ने लगी। She ran over the field. वो मैदानों में दौड़ने लगी। फील्ड का मतलब होता है मैदान। Through the woods, और जंगल के रास्ते से। वुड्स यहाँ पर, वुड्स का मतलब होता है यहाँ जंगल, और जंगल के रास्ते से, मैदान, जंगल, हर जगह वो चिल्ला चिल्ला कर उसे ढूंढने लगी। इवानुष्का, 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 और चिल्लाते हुए दौड़ते हुए वो पहुंची एट द एज ऑफ अ वुड, एक जंगल के किनारे। एज का मतलब होता है किनारा। She saw a hut on Hen's feet.
What do you listen? Hut on hands feet. Hut झोपड़ी, hands feet मुर्गी के पैरों पर एक झोपड़ी. क्या हमने कभी देखा है? बिल्कुल नहीं. She saw a hut on hands feet and it's turning round and round. और वो hands feet पर जो झोपड़ी थी वो गोल 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 घूम रही थी. इवानुष्का उसको देखकर बहुत ज्यादा डर गई, बहुत खौफजदा हो गई. Inside the hut sat Baba Yaga, the witch. उस झोपड़ी के अंदर बैठी हुई थी बाबा यागा डायन. विच का मतलब होता है डायन और उसका नाम था बाबा यागा. Inside the hut sat Baba Yaga, the witch. उस डायन का नाम था बाबा यागा. जैसे ही वो झोपड़ी टर्न हुई and as the hut turned, Alyanushka saw Ivanushka sleeping in a corner. एक कोने में सोया हुआ था. कौन? इवानुष्का. उस अंधेरी झोपड़ी में जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक डायन बैठी हुई थी जिसका नाम था बाबा यागा. आर्यनुष्का was frightened. आर्यनुष्का बहुत ज्यादा डर गई, बहुत खौफजदा हो गई देखकर. But what could she do? वो कुछ नहीं कर सकती थी. She went inside the hut. वो धीरे धीरे उस झोपड़ी के अंदर गई. Who are you? said Baba Yaga. बाबा यागा ने पूछा, Who are you? And why have you come? और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? I am Alyanushka. मैं आर्यनुष्का हूँ. And I have to take my baby brother. और मैं मेरे छोटे भाई को लेने आई हूँ. और ये यहाँ पर क्यों है? किस लिए है मैं नहीं जानती. गीस इसे उठाकर ले आए हैं. और तुम कौन हो? मैं नहीं जानती. बहुत ही भयानक दिखने वाली औरत हो तुम. शायद कोई डायन हो. उसने इस तरह से कहा. Said she and picked up her baby brother. उसने इतना कहते हुए अपने बेबी ब्रदर को उठा लिया. Come to take your baby brother. Laughed Baba Yaga. I have got your baby brother and now I have got you too. उस बाबा यागा नाम की डायन ने कहा, तुम अपने भाई को लेने आई हो? मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगी जिस तरह से मैंने तुम्हारे भाई को पकड़ा है. Oh no, you haven't. आर्यनुष्का ने कहा, बिल्कुल नहीं. Holding Ivanushka, she jumped out of the hut. उसने इवानुष्का को अपनी गोद में ले लिया और वहां से छलांग लगाकर नीचे उतर आई. And began to run back to home again. और फिर वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगी. घर जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए. Then Baba Yaga, the witch, called up the geese. उस बाबा यागा नाम की डायन ने उन गीस को बुलाया जिससे उसने उस बच्चे को पकड़वाया था. Go after the children and bring them back to me. She shouted. उसने चिल्लाकर कहा उन गीस से, जाओ उन बच्चों को पकड़ के लाओ मेरे लिए. The geese went flying after the children. और वो गीस, वो परिंदे, बुरे परिंदे उन बच्चों के पीछे उड़ने लगे, तेजी से उड़ने लगे ताकि वो जल्द से जल्द उन्हें पकड़ ले. Alyanushka ran and ran till she came to the milk river. Alyanushka दौड़ती रही. फिर वो मिली मिल्क रिवर से जिससे वो पहले मिली थी, जिससे उसने कहा था कि तुम्हें दूध पीना पड़ेगा. और आर्यनुष्का ने दूध पिया था. उसे सब कुछ याद आ गया कि ये तो वो ही नदी है जो मैं आते वक्त जिनसे मिली थी. उसने नदी से कहा, मिल्क रिवर हाइड अस प्लीज. उसने कहा, दूध की नदी प्लीज हमें छुपा लो. वो जो झोपड़ी है ना, वो जो झोपड़ी है मुर्गी के पैरों पर, वो गोल 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 घूमती है और उसमें बैठती है एक डायन, बदसूरत सी, बहुत ही गंदी दिखाई देने वाली डायन जिसका नाम है बाबा यागा. और वो हमें पकड़ना चाहती है. उसने मेरे भाई को पकड़ रखा था
मेरे भाई को घर ले जाना चाहती हूँ, प्लीज हमें छुपा लो, वो गीस बहुत बुरे परिंदे हमें पकड़ने आ रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प कर दो प्लीज। वो रो रो कर मदद मांगने लगी। क्विकली द मिल्क रिवर हिट द चिल्ड्रन। बहुत जल्द ही उस दूध की नदी ने दोनों को अपने अंदर छुपा लिया। The geese couldn't find them and turned back. गीस उन्हें उड़ते हुए देखने के लिए आए, ढूंढा, इधर उधर हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं दिखाई दिए। फिर वो वापस चले गए। अलीनुष्का began to run again. अलीनुष्का फिर से दौड़ने लगी अपने घर की तरफ। दूध की नदी से निकलने के बाद वो दौड़ती रही अपने घर की तरफ। But the geese saw the children and came after them. और फिर वो बुरे परिंदों ने उन्हें देख लिया और फिर जो है उनके पीछे वो उड़ने लगे, तेजी से उड़ने लगे ताकि वो उन्हें पकड़ ले, जल्द से जल्द पकड़ ले। लेकिन अलीनुष्का बिल्कुल नहीं डरी, वो दौड़ती रही, तेज तेज दौड़ती रही, इतना दौड़ी कि वो मिल गई एप्पल ट्री से। होल्डिंग हर ब्रदर अलीनुष्का ran till she came to the apple tree. अपने भाई को गोद में पकड़ते हुए वो इतनी तेजी से दौड़ी कि वो पहुंच गई एप्पल ट्री के पास। फिर उसने एप्पल ट्री से कहा, एप्पल ट्री हाइड अस प्लीज। सेब के दरख्त प्लीज हमें छुपा लो, वो बुरे से परिंदे हमें पकड़ना चाहते हैं, हम दोनों भाई बहन को पकड़ना चाहते हैं। वो जो डायन है ना, डायन बाबा यागा, उसने हमें पकड़ने के लिए भेजा है। Quickly the apple tree hid the children in its branches. उस एप्पल ट्री ने उन दोनों को अपने ब्रांचेस में छुपा लिया। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा, शाखे, दरख्तों के पत्तों से भरी हुई शाखें, जिसमें अलीनुष्का और इवानुष्का दोनों आसानी से छिप गए। The geese couldn't find them and turned back. गीज उड़ते हुए उस दरख्त के पास पहुंचे, बहुत ढूंढा, इधर उधर यहाँ वहां बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाए। फिर वो वापस चले गए। अलीनुष्का began to run again. अलीनुष्का फिर से दौड़ने लगी, तेजी से दौड़ने लगी ताकि वो अपने घर जल्द से जल्द पहुंच जाए, उसके मम्मी डैडी के आने से पहले। But the geese saw the children and flew after them. उन गीस ने उन्हें देख लिया भागते हुए, दौड़ते हुए, और उनके पीछे वो तेजी से दौड़ने लगे ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ ले और उन्हें बाबा यागा को सौंप दे। वो तेजी से उनकी तरफ उड़ने लगे। Holding her brother, अलीनुष्का ran till she came to the oven. अलीनुष्का बहुत तेजी से दौड़ने लगी भाई को पकड़े हुए, और इतनी दौड़ी कि वो पहुंच गई ओवन के पास। ओवन जिसने कहा था उस गेहूं के बने हुए ब्रेड खाने के लिए, उसे सब कुछ याद आ गया और वो उस ओवन से कहने लगी, ओवन हाइड अस प्लीज। अलीनुष्का ने रोते हुए कहा, प्लीज ओवन मुझे छुपा लो, प्लीज छुपा लो, वो गंदे से परिंदे जिन्होंने मेरे भाई को पकड़ा था वो मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। मैं बहुत मुश्किल से मेरे भाई को छुड़ा कर लाई हूँ। वो वहां पर एक डायन है, जंगल में, जंगल के किनारे एक झोपड़ी है जो मुर्गी के पैरों पर गोल गोल घूमती है। उसमें बैठती है एक डायन बदसूरत सी जिसका नाम है बाबा यागा। वो हमें पकड़ लेंगी, प्लीज हमें छुपा लो, प्लीज हमें छुपा लो। Quickly the oven hid the children. ओवन ने जल्दी से बच्चों को छुपा लिया। The geese couldn't find them. और गीस जो है उन्हें ढूंढ नहीं पाए। They flew around and round and up and down, but it was no use. और वो गीस बहुत बुरे परिंदे राउंड एंड राउंड घूमने लगे, ढूंढने लगे, अप एंड डाउन करने लगे, हर जगह ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह उन्होंने घूम घूम कर ढूंढा, लेकिन वो बच्चे उन्हें नहीं मिले क्योंकि वो तो छुपे थे ओवन के पीछे। किचन अंदर। At last they turned and flew back to Baba Yaga. और फिर लास्ट में वो गीस जो बहुत बुरे थे उन्होंने सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन वहां बच्चे नहीं मिल पाए, तो वो वापस चले गए बाबा यागा के पास।
बहुत बुरी, डायन. Then Alyanushka crawled out of the oven with her baby brother. Alyanushka खिसकते हुए उस ओवन से के पीछे से निकली और अपने बेबी ब्रदर के साथ. क्राउड का मतलब होता है खिसकना. And ran home with him, और अपने घर की तरफ दौड़ गई और वो बहुत जल्द अपने घर पर पहुंच गई. At last, and before long, father and mother came home too. और इतना सब कुछ होने के बाद मम्मी और डैडी भी घर पर आ गए और उन्होंने देखा इवानुष्का और आल्यानुष्का दोनों घर पर है, बिल्कुल सही सलामत. हमारी स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो गई. आपको मजा आया? बहुत अच्छी थी ना स्टोरी? अच्छी लगी सबको स्टोरी? Yes. Okay. Now the time to new words written over in your book, and remember the meanings. Okay, one by one I will tell you the meaning of new words. इस कहानी में आपको कुछ नए अल्फाज आए हैं. ये नए अल्फाज आप सुनेंगे और उसके मीनिंग्स लिखेंगे. सडनली का मतलब होता है अच्छा. फ्लॉक का मतलब होता है झुंड. swooped का मतलब होता है झपटा मारना. picked up का मतलब होता है उठा लेना. wicked यानी बहुत बुरे. flew उड़ जाना. geese होता है एक परिंदा जिसकी गर्दन लंबी होती है. geese है प्लूरल goose का. goose यानी परिंदा, geese यानी परिंदे. sobbed का मतलब होता है सिसकियां लेकर रोना. wept बहुत ज्यादा रोना. fields मैदान. woods जंगल. witch witch का मतलब होता है डायन. crawled का मतलब होता है खिसकना. frighten यानी खौफजदा, बहुत ज्यादा डर जाना. ये सारी मीनिंग्स लिख लिया आपने? Yes, miss. Now the time to revision. I will ask you some easy question about the story. You have to try to give me the answer. Okay? टीचर घर काम क्या है? Let me ask you, beta. Okay? Okay. What the name of Alyanushka's brother? Okay? What the name of Alyanushka's brother? Try to give the answer. Ayushka. Alyanushka's brother. Ivanushka. Ivanushka. The name of Alyanushka's brother? Ivanushka. The second question, who picked up the baby brother? Who picked geese? Who picked up the baby brother? Give me brother. Give me my brother. The baby brother. Okay. Excellent. Now the third question. What's the name of which woman? What? Baba Yaga. Baba Yaga. What is the name of which woman? Baba Yaga. Omar met with Alyanushka in a way. रास्ते में आल्यानुष्का को कौन कौन मिला? Open apple tree, milk river. Okay, first oven, second apple tree, and third milk river. Milk river. Very good, excellent. Here is one activity. Okay, you have to read loudly and then copy it. Okay. One by one we have to read loudly. A loaf of bread. Okay, a loaf of bread. Bread का टुकड़ा. Okay, या पाव वाली रोटी. Yes, ma'am. Okay. Glass of milk.
A glass of milk. Glass. Repeat after me, students. Please repeat after me. Okay? A glass of milk. A glass of milk. Okay, very good. A piece of paper. A piece of paper. A piece of paper. A piece of paper. A loaf of bread. A loaf of bread. A glass of milk. A glass of milk. Very good. A piece of paper. A piece of paper. Excellent. A drop of water. A drop of water. Drop of water. A drop A lump of butter. A lump of butter. A lump of butter. A lump of butter. Okay, very good. A slice of bread. 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 Okay, repeat once again after me. Okay. A loaf of Yes. bread. A loaf of bread. A loaf of bread. A glass of milk. A glass of milk. A piece of paper. Piece of paper. A piece of paper. A drop of water. A drop of water. A lump of butter. A lump of butter. A slice of bread. A slice of bread. Okay, very good. Excellent. Now your homework is, write down your homework. Make your own funny names like Baba Yaga. Do they sound like English name? आपको बाबा यागा जैसे कुछ वर्ड्स, कुछ नाम बनाना है अपनी मर्जी से, ठीक है? तो आप लोग जो है मुझे यहाँ पर बताएंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाम आपके जहन में आ रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं एग्जाम्पल बाबा यागा के जैसे? एकदम फनी नेम दे सकते हैं? बाबा धागा, वेरी गुड. हाँ. बाबा धागा. और कोई बोलेगा? और बाबा कोई? योगा. बाबा योगा. ओके, जस्ट लाइक गागा रोडा है ना? और नेक्स्ट कचमुच है ना? तो ऐसे विच के लिए, डायन के लिए आपको एकदम फनी नेम ढूंढना है, ठीक है? आप अपनी मर्जी से भी उसको बना सकते हैं. बाबा. तो आपको जो है ऐसे फनी नेम्स बनाने हैं, लिखने हैं. ओके, अब यहाँ पर